Hey guys, मैं हूं निकेत भोसले और आज के इस वीडियो में I'll be reviewing Venom: The Last Dance in IMAX 3D. So before starting the review, I need to come clean that I missed my first 45 minutes of the film because it was a very last minute decision कि मैं IMAX screening attend करूंगा. Plus it was a evening show, so it was a prime time, so I got stuck in traffic. And so did I miss my first 45 minutes of the film. So I'll be judging the whole IMAX experience, excluding that first 45 minutes. वो जो घोड़े वाला सीन था और वो जो एरोप्लेन वाला सीन था वो दोनों मैंने मिस करे थे IMAX में. So I won't be talking about these scenes. Okay? Now talking about AR, that is aspect ratio, film have switching aspect ratio. So selective scenes will be in 239:1. CinemaScope aspect ratio, which is a taller aspect ratio, which won't fill up on the flat screen. That means there will be empty space or black bar up and down, which won't fill up the whole screen. And then there will be IMAX expanded aspect ratios, which will fill up the whole screen, cover your whole peripherals, and give you IMAX immersion. अभी हम बात करेंगे IMAX immersion के बारे में with having 2 points in this department. First one will be how much of the film was in IMAX expanded aspect ratio, and my answer will be most of the film was in IMAX expanded aspect ratio. Excluding the first 45 minutes, 10-15 minutes were in scope aspect ratio. Then for straight 40-50 minutes, film had IMAX expanded aspect ratio, if I'm not wrong. फिर कुछ small portion के लिए 10 मिनट का scope aspect ratio, then again for 15-20 minutes IMAX expanded aspect ratio. कुछ selective sections थे वो flat aspect ratio में थे, यानी कि IMAX expanded aspect ratios में थे. बट उसी सीन को जब बाद में रिप्ले करा गया तब वो स्कोप एस्पेक्ट रेशियो में थे. तब मुझे वो सेम फीलिंग आई जब मैं देवरा IMAX में देखने गया था. हो सकता है कि पूरी फिल्म फ्लैट एस्पेक्ट रेशियो में रहे एंड दे मैन्युअली डिसाइडेड कि ये वाले सीन सिनेमास्कोप एस्पेक्ट रेशियो में रहेंगे और ये वाले सीन IMAX एक्सपेंडेड एस्पेक्ट रेशियो में रहेंगे टू गिव यू मोर IMAX इमर्जन, क्योंकि बस सिलेक्टिव सेक्शंस ही IMAX के स्क्रीन को फिल अप करेंगे, क्योंकि लेस इज मोर वाला फंडा यहाँ पर अप्लाई होगा. और इस थियरी को मैं क्यों सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि लेट देयर बी कार्नेज भी एक फ्लैट कंटेंट थी और वो स्टैंडर्ड सिनेमाज में भी फ्लैट एस्पेक्ट रेशियो में चली थी, गिविंग यू पिलर बॉक्स इफेक्ट. और ये जब फिल्म नॉन IMAX सिनेमाज में रिलीज होगी वो क्रॉप्ड वर्जन में रहेगी, यानी कि उन्होंने सिनेमास्कोप एस्पेक्ट रेशियोज के हिसाब से भी शूट करी गई थी फिल्म. सेकंड पॉइंट इन IMAX इमर्जन डिपार्टमेंट की जितने भी IMAX एक्सपेंडेड एस्पेक्ट रेशियो वाले सीन्स थे वो कितने इंपैक्टफुल है IMAX फॉर्मेट में. आई विल से handful of moments were actually very good to watch it on a big IMAX screen. एंड ऑल्सो हैंडफुल ऑफ मोमेंट जो IMAX एक्सपांडेड सीन्स है, यानी कि पूरा स्क्रीन फिल अप करता है, बट इट डज नॉट add any impact or any immersion to your movie going experience, especially the IMAX experience. Sometimes the story is also so weak that IMAX even can't help you with the immersion. Mixed bag for this one. Now let's talk about IMAX 3D. ये फिल्म बिल्कुल भी 3D के लिए नहीं बनाई गई. I mean they have shot this film in a way कि उसमें layers ही नहीं है. तो अगर लेयर्स ही नहीं है तो डेप्थ कहाँ से आएंगे, तो पॉपआउट्स तो बहुत ही दूर की बात है. सो इफ यू आर प्लानिंग टू वॉच दिस फिल्म इन स्टैंडर्ड 3D और इवन इन रियल 3D won't make any difference. Just watch this film in 2D. ठीक है. The switching aspect ratio really helps the IMAX 3D experience. Cause जो सिनेमास्कोप वाले सीन्स होते हैं, you have to make sure you frame it in a way की चीजें एक वो रेक्टेंगुलर छोटे एस्पेक्ट रेशियो में फिट इन हो. बट जैसे IMAX का एस्पेक्ट रेशियो जब आएगा तो यू हैव मोर स्पेस बिकॉज दिस इज अ टॉलर एस्पेक्ट रेशियो. तो जो 3D है वो और थोड़ा सा पॉपिंग आउट होगा, which won't crop, so आपको क्रॉप्ड 3D नजर नहीं आएगा. यहाँ वहाँ लेयर्स में भी आपको थोड़े डेप्थ नजर आते हैं, फुल एस्पेक्ट रेशियो हो जाता है फिल्म का, तो तब आपको मे बी थोड़ा 3D मच बेटर लगे. 3D डेप्थ के बारे में बात करते हैं, यानी कि फिल्म मुझे कितनी बाहर लगी 3D में. तो 0 नंबर रिप्रेजेंट्स द स्क्रीन एंड आई सैट ऑन द थर्ड लास्ट रो. डेप्थ ओवरऑल फिल्म के डेप्थ मुझे थर्ड रो, फोर्थ रो, मैक्स टू मैक्स फिफ्थ रो तक बाहर आए. उसके बाहर मुझे कुछ भी चीजें 3D में महसूस नहीं हुई. सो इट वॉज अ वेरी माइल्ड 3D एक्सपीरियंस. पॉपआउट्स के बारे में कहूँ तो 2-3 मोमेंट जब जो एलियन जब वो रोर करती है तो कुछ स्पिट यहाँ वहाँ आ जाता है. बाइक वाला सीन है, वहां पर वो जो बाइक का जो डर्ट है वो थोड़ी ऐसी स्क्रीन के पास आती है. दैट्स ऑल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट IMAX ऑडियो के बारे में बात करते हैं. जो वेनम की जो वॉइस है जो एडी ब्रॉक के अंदर होती है, दैट वॉज वेरी डीप इन IMAX. लाइक आई कुड फील लाइक ओ दिस इज अ वेरी जाइगेंटिक ऐसा बंदा कोई वेनम. सो डेफिनेटली हिज वॉइस इन IMAX फेल्ट वेरी लाउड एंड पावरफुल. दैट्स दैट फॉर द IMAX. ड्यून 1 का ऑडियो इतना लाउड है कि पूरा ऑडिटोरियम वाइब्रेट होता है. ऑलवेज मेनी कंप्लेंट्स कि IMAX का ऑडियो इतना लाउड है कि हेडेक आता है या फिर कानों में दर्द होता है. एंड नाउ IMAX इज लाइक वी डोंट हैव एनीथिंग टू टॉक अबाउट व्हेन इट कम्स टू ऑडियो डिपार्टमेंट, एज इफ दे हर्ड द फीडबैक एंड अप्लाइंग इट इन अ ऑपोजिट वे. सो गाइस, दैट वाज माय रिव्यू ऑफ Venom 3 इन IMAX एंड आई डू बिलीव दिस इज नॉट अ फेयर कंपैरिजन. और ये मैंने फिल्म 4K सिंगल लेजर में देखी थी
and I'm going to rewatch this film in 2K Xenon, and I'll do a whole comparison between the 4K laser and 2K Xenon. So please, अरे यार क्या कहते हैं? Please subscribe and stay tuned.